So good morning, everyone. Welcome to SS Technology and welcome to Surya Namaskar session. This is 6 o'clock right now, and we are all gathered here for doing Surya Namaskar. It's very cold today. Come on, sit straight. Have a smile on your face. I know तुम्ही सगळे दमलेले आहात, झोपेत आहात. Smile करा. Breathe in. Hold your breath. Smile on your face. Breathe out. Again, breathe in. Hold. Smile. A big smile. Release, breathe out. Breathe in, hold, smile. Release, breathe out. Join your hands for the prayer. So let's get ready for Surya Namaskar, everyone.
I'm going to turn on Surya Namaskar video, watch this video one time, and then you have to start your Surya Namaskar. We are going to do this for 20 minutes. This is 6:16. So we will meet at 6:36. Okay? 6:36 मिनिटांनी 20 मिनिटात एक्झॅक्टली आपण भेटूया. Let's begin. सूर्य नमस्कार करेंगे। सावधान, दोनों हाथ छाती के मध्य में जोड़कर रखिए। जुड़े हुए हाथों को सिर के ऊपर लेके जाइए। भुजाओं का कानों को स्पर्श हो। ऊपर की तरफ देखिए। ऊर्ध्व नमस्कार आसन। दोनों हाथ दोनों पैरों की बाजू में रखिए। माथा घुटनों को लगाने की कोशिश करें। पैर घुटने में सीधे हो। जानु शिरासन। बायां पैर पीछे, घुटना जमीन को लगाइए। नजर सामने रखिए। एक पाद प्रसरण। दाहिना पैर पीछे लेके बाएं पैर को समांतर रखिए। दोनों हाथ और पैर पर शरीर का भार संभालकर नजर सामने रखिए। द्विपाद प्रसरण या दंडासन। शरीर को सीधे जमीन पर लाइए। जमीन को 8 अंगों का स्पर्श हो। सीट थोड़ी सी ऊपर। अष्टांग नमस्कार। कमर से ऊपर का हिस्सा उठाइए। हाथों की कोहनियां शरीर को सटी रहें। कोहनियां थोड़ी मुड़ी हुई। नजर सामने रखिए। भुजंगासन। दोनों पैर के तलवे और एड़ियां जमीन को लगाइए। गर्दन अंदर लीजिए। लक्ष्य पैर के अंगूठे की तरफ रहें। भूधरासन। दोनों हाथों के बीच में बायां पैर लाइए। नजर सामने रखिए। एक पाद आकर्षण। दाहिना पैर आगे लेके बाएं पैर की बाजू में रखिए। माथा घुटनों को लगाइए। द्विपाद आकर्षण। Hello everyone, doing Surya Namaskar. Get up, come on. Take your standing position. Turn on your camera, Sai, Swapnil, Piyush. सूर्य नमस्कार। Tanish, you have to turn on your camera, do it in Steady. Join the palms in Namaskar position near the chest. Raise the hands from Namaskar position upward towards the head, the arms touching the ears. Look up. This is Urdhva Namaskar Asana. While bending forward at the hips, bring the hands down and place the palms by the side of the feet. Try to touch the forehead to the knees. Keep the legs straight, Janu Shirasana. Bring the left leg back, resting it on the knee and the toe. Look at the front. Ek Pad Prasaran. Bring the right leg backward so that both legs are parallel. Balance your body on both hands and toes. Look at the front. Dvipad Prasaran or Dandas. While bending at the elbows, bring the body down. Let 8 parts of the body touch the ground. Keep the seat portion up. Ashtang Namaskar. Raise the upper portion of the body by bending at the waist, keeping the elbows close to the body and slightly bent. Bhujangasana. Get back on your feet so that the soles and heels are firmly placed on the ground. Drop down the neck. Look at the big toes. Bhudharasana. Bring the left leg forward and rest it between the hands. Look at the front. Ek Pad Akarshan. Now bring the right leg ahead, knees straight. Bring down the forehead towards the knees. Dvipad Akarshan. Stand straight. Hands in Namaskar position.
Surya Namaskar. Steady. Join the palms in Namaskar position near the chest. Raise the hands from Namaskar position upward towards the head, the arms touching the ears. Look up. This is Urdhva Namaskar Asana. While bending forward at the hips, bring the hands down and place the palms by the side of the feet. Try to touch the forehead to the knees. Keep the legs straight, Janu Shirasana. Bring the left leg back, resting it on the knee and the toe. Look at the front, Ek Pad Prasaran. Bring the right leg backward so that both legs are parallel. Balance your body on both Hangasana. Get back on your feet so that the soles and heels are firmly placed on the ground. Drop down the neck. Look at the big toes. Bhudharasana. Bring the left leg forward and rest it between the hands. Look at the front. Ek Pad Akarshan. Now bring the right leg ahead, knees straight. Bring down the forehead towards the knees. Dvipad Akarshan. Stand straight. Hands in Namaskar position. Okay, come on, take your stand. Sit. Sit down, everyone. Turn on your camera. Smile. Okay, now tell me how many Surya Namaskar have you done, Utkarsha? I have done 40 Surya Namaskar. Okay, good. Piyush? I have also done 40 Surya. Good. Sandesh? I have done 100 Surya Namaskar. 100. Okay. Swapnil? I have done 100. Okay. Tanish? I have done 30 Surya Namaskar. 30. Yes, sir. I can't see you. Can you turn on your light? Turn on your light, then I can call you. Wait, sir. Harshada, how many? Sir, I have done 40 Surya Namaskar. Okay. Sai? Sir, I have done 30 Surya Namaskar. Mayuri? Sir, I have done 40 Surya Namaskar. Yeah, Anushri? Sir, today I have done 60 Surya Namaskar. Good. Okay, so today we have got another couple, another pair who is going to talk all Helen Keller's quote. I'm just trying to remember. And I think Mayuri and Swapnil. Okay, so Mayuri, you just start the quote and Swapnil will finish. Are you ready, Swapnil? Yes, sir. Okay, I'm going to spotlight you and Mayuri also. Okay, chalo, start. Life is either a daring adventure or nothing. Alone we can do so little, together we can do so much. The best and most beautiful thing in the world cannot be seen or even touched, they must be felt with the heart. Keep your face to the sunshine and you cannot see the shadows. Although the world is full of suffering, it is also full of the overcoming of it. Optimism is the confidence. When one door of happiness closes, another opens, but often we look so long at the closed door that we do not see the one which has been opened for us. The only thing worse than being blind is having sight but no vision. Walking with a friend in the dark is better than walking alone in the light. What we have once enjoyed, we can never lose. All that we love deeply becomes a part of us. Thank you, sir. Thank you, sir. Yes, good. Thank you very much, Mayuri and Swapnil.
So let's begin our reading session. We are reading You Can Win, written by Shiv Khera. And what is Shiv Khera saying? Yes, winners don't do different things, they do things differently. Yes. So we are here to do something different. आपण differentच करतोय. And we are on page number 29. Page number 29 वरती होतो आपण. And we were learning 6 C's. So let's understand and let's go ahead with these 6 C's. So author is telling us about a person can and will be successful with or without formal education if they have 6 C's. लेखकाचं असं म्हणणं आहे की कुठलाही व्यक्ती जर तो फॉर्मल एज्युकेशन म्हणजे शाळेमध्ये जर नाही गेला तरी सुद्धा तो सक्सेसफुल बनू शकतो जर त्याच्याकडे हे 6 गोष्टी असतील. The first thing is character. So let's understand what is the meaning of character. Character म्हणजे काय? Character म्हणजे चरित्र. So तुमच्या जीवनामध्ये तुमच्याकडे कॅरेक्टर असायला पाहिजे. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ कॅरेक्टर? कॅरेक्टर चरित्र म्हटले की सगळे गुण ऑटोमॅटिकली त्याच्यामध्ये आले. ज्यावेळी आपण एखादं कॅरेक्टर अभ्यास करतो, लाईक विवेकानंद किंवा अर्जुन, कृष्ण किंवा राम किंवा भगतसिंग, महात्मा गांधीजी यांचे जेव्हा चरित्र आपण अभ्यास करतो, दीज आर द कॅरेक्टर्स. ही चरित्र आहेत. इथे लक्षात, ही चरित्र का म्हटलेलं आहे यांना? कारण ह्यांनी एक महान कार्य केलेलं आहे आणि ते कसं केलेलं आहे? निस्वार्थपणे, सेल्फलेस. सो जर तुम्हाला सक्सेसफुल बनायचं असेल तर फर्स्ट यू हॅव टू डेव्हलप युअर कॅरेक्टर. तुमचं कॅरेक्टर डेव्हलप करायचं म्हणजे काय? तर तुमच्यामध्ये बरेच गुण आले पाहिजेत. लाईक ऑनेस्टी हा पहिला गुण असायला पाहिजे, प्रामाणिकता. त्या प्रामाणिकता बेस आहे. प्रत्येक ठिकाणी आपण प्रामाणिक राहायला पाहिजे. देशामध्ये वाढलेला भ्रष्टाचार हा का कमी होत नाहीये? कारण बेसमध्ये प्रामाणिकता नाहीये. वी आर नॉट ऑनेस्ट विथ अवर कंट्री, वी आर नॉट ऑनेस्ट विथ अवर जॉब, वी आर नॉट ऑनेस्ट विथ अवर रिलेशन्स. आपण ऑनेस्ट नाहीये. सो ऑनेस्टी हा तुमचा बेस आहे. प्रत्येक ठिकाणी ऑनेस्टी लागते. बघा, तुम्ही साधा एक्झाम्पल घ्या. दुकानात गेलात, तुम्ही एखादी वस्तू 10 रुपयाची घेता, राईट? पण 10 रुपयाची वस्तू घेताना तुम्ही त्या वस्तूची जी किंमत आहे तीच तुम्ही देता. ऑनेस्टली यू आर गिव्हिंग दॅट प्राइस ओनली. तुम्ही वस्तू 10 रुपयाची आहे तर तुम्ही 10 रुपयाची नोट देता. जर तुम्ही 20 रुपयाची नोट दिली तर दुकानदार तुम्हाला ऑनेस्टली 10 रुपये परत करतो. एवढं सिम्पल असतं ऑनेस्टी. पण आपण आपल्या जीवनामध्ये ऑनेस्टी का नाही आणत? कारण ऑनेस्ट राहिलं की काम करावं लागतं. आणि बेसिकली आपल्या सगळ्यांना आळस आहे, काम करावं लागतं म्हणून आपण ऑनेस्ट नाही. अभ्यास केला नाही, का नाही केला? सर मी बाहेर गेलो होतो. वी आर नॉट ऑनेस्ट. आपण घरीच असतो, टीव्ही बघत असतो, पण दुसऱ्या दिवशी शाळेत जाऊन वी गिव्ह रिझन्स. वी आर नॉट ऑनेस्ट विथ आवर सेल्फ. आपण स्वतःशी ऑनेस्ट नाही आहोत. स्वतःशी ऑनेस्ट राहणे हे जगामधलं सगळ्यात मोठा गुण बोलू शकत. सगळ्यात मोठा गुण आहे, जगातली सगळ्यात मोठी गोष्ट. जो व्यक्ती स्वतःशी प्रामाणिक राहतो तो जगात कधीच कोणाला फसवू शकणार नाही. सो इट विल डेव्हलप युअर कॅरेक्टर. जेवढेही मोठमोठे लोक होऊन गेलेले आहेत, ज्यांनी निस्वार्थ काम केलेलं आहे. आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिझनेसमॅन, आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिच पर्सनॅलिटीज. आय एम टॉकिंग अबाउट सच पीपल ज्यांनी देशासाठी खूप मोठं काम केलेलं आहे निस्वार्थपणे. लाईक बाबा आमटे, महात्मा गांधी, गाडगे बाबा किंवा विनोबा भावे, देन पंडित जवाहरलाल नेहरू किंवा स्वातंत्र्यवीर सावरकर, लोकमान्य टिळक. हे जे चरित्र आहेत हे काय आहेत? त्यांनी सेल्फलेस काम केलेले देशासाठी. दे वर ऑनेस्ट. ते ऑनेस्ट होते. आता रिसेंटली आपल्या सिंधुताई वारल्या, तर सिंधुताई सुद्धा काय आहेत? ऑनेस्ट होत्या, त्या प्रामाणिक होत्या. सो ऑनेस्टीच तुम्हाला वरती घेऊन जाते, प्रामाणिकताच तुम्हाला घेऊन जाते. तर तुमचं चरित्र, तुमचं कॅरेक्टर डेव्हलप करायला कोण हेल्प करतं? युअर ऑनेस्टी. अँड देन थर्ड पॉइंट बघा, इथे करेज दिलेला आहे.
करेज इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग. करेज शिवाय काहीच होत नाही जगामध्ये. प्रत्येक ठिकाणी करेजच लागतं. एक टीव्ही मध्ये जाहिरात येते, डर के आगे जीत है असं म्हणतात. रिअली डर के आगे जीत है. जर तुम्हाला भीती वाटते ना, ती गोष्ट मुद्दामून करायची. इथे लक्षात, ज्यावेळी तुम्ही ती गोष्ट मुद्दामून करतात, दिस इज कॉल्ड करेज. पण याचा अर्थ हा नाही की समोर साप दिसला आणि मग तुम्ही जबरदस्ती तिथे जाता. नो, ते म्हणजे तुम्ही उगाच तुमच्या पायावरती धोंडा फेकल्यासारखं झालं. किंवा वाघ दिसला आणि तुम्ही बोलता ये रे बाबा मी तुला गळा भेट करतो. तसे प्रकार नाही करायचे. त्याला करेज नाही बोलत. येते लक्षात. ते म्हणजे अतिशहाणपणा झाला. करेज कुठे दाखवा? करेज स्वतःचं जीवन घडवण्यामध्ये दाखवा. प्रामाणिक राहण्यामध्ये करेजियस बनणे गरजेचं आहे. इथे लक्षात. अभ्यास करताना करेज दाखव. पाठांतर करताना करेज दाखव. एखादा धडा नाही समजत आहे तर मग करेज दाखव ना, मला का नाही समजत आहे. मग डेव्हलप युअर करेज. तुमचं धाडस इथे वाढवा, डेव्हलप कर. आता सकाळी 6ला तुम्ही सगळे, मी नेहमीच का बोलतोय, इट इज रिअली इम्पॉसिबल. आत्ताच्या काळामध्ये सकाळी 6ला उठून बसणं हे अवघड आहे. वाय? कारण आपल्याला काहीच गोष्ट नाहीये ना, शाळा नाहीये, क्लास नाहीये, कुठे जायचं नाहीये. मग का उठायचं? तर फक्त सूर्यनमस्कार करायला उठायचं. आणि ते कोणासाठी? तर स्वतःसाठी. गणेश सरन, तुम्ही सूर्यनमस्कार केले तर मला काय फायदा होणार आहे का? काय माझी बॉडी बनणार आहे? नो, तुमची बॉडी डेव्हलप होणार आहे. इथे लक्षात. तुम्ही आणखीन छान दिसणार, तुम्ही आणखीन सुंदर दिसणार, तुमचं बॉडी डेव्हलप होणार आहे. सो तुम्ही तिथे काय केलेलं आहे? एक स्टेप इतरांपेक्षा पुढे. यू हॅव ब्रॉट करेज इन युअर लाईफ. 6 वाजता उठण्यासाठी 5:30 वाजल्यापासून तुम्हाला करेज दाखवावं लागते. अरे उठा रे, अरे उठा रे. आई म्हणून, आई धक्का मारत, उठ रे उठ. संदेश काय करतोस तू? मग संदेश, आई 2 मिनिटं थांब. हर्षदा, आई 5 मिनिटं. आहे की नाही? तनिष असं. पण तिथेही आपण काय करतो? करेज दाखवतो आणि उठतो, असं डोळे चोळतो, नाही नाही मला आता जायला पाहिजे. मग झूम ऑन काढतो, जातो वॉशरूम मध्ये, वॉश घेतो आणि मग परत बसतो. दिस इज कॉल्ड करेज. आज अख्खं जग कोरोनामुळे बंद आहे. शाळा बंद, कॉलेजेस बंद, सगळे आराम करतात. कुठल्याही विद्यार्थ्याला जाऊन विचार, किती वाजता उठला रे बाबा तू? तो बोलेल मी आरामशी 7:30-8ला. तुम्ही किती वाजता उठलात? 5:30ला. वाय? टू डू द सूर्य नमस्कार. दिस इज कॉल्ड करेज. सो ह्या 6 इज एज्युकेशन. तुम्ही हे स्वतःला एज्युकेट करताय. नेक्स्ट, कमिटमेंट. कमिटमेंट खूप महत्वाचा भाग आहे. एकदा एखाद्याला वेळ दिला त्या गोष्टीला, त्या वेळेत ती गोष्ट करायची. कमिटमेंट. मग कमिटमेंट विथ युअर स्टडीज, कमिटमेंट विथ युअर सेल्फ. स्वतःशी कमिटमेंट ठेवा. तुम्ही दुसऱ्याला वेळ दिला तर तुम्ही कदाचित तो रागवेल म्हणून जाल, पण सरांचे लेक्चर्स 5 वाजता आहे, मग तुम्ही घाबरून 5 वाजता याल, पण त्या कमिटमेंटला अर्थ नाही. कमिटमेंट कुठे? स्वप्नील, तनिष, कमिटमेंट कुठे पाहिजे? तू ठरवलंय? हा बोल. आपल्याशी पाहिजे कमिटमेंट. विथ अवर सेल्फ. जर तुम्ही ठरवलं की नाही मी 5 वाजता अभ्यासाला बसणार आहे, तर इन एनी केस, कुठल्याही कंडिशन में, इन ऑल कंडिशन्स, यू हॅव टू sit at 5 o'clock, open your textbook and start reading. Start doing your homework. Start doing your study. This is called commitment. इथे लक्षात. ह्याला कमिटमेंट बोलतात. जे तुम्ही ठरवलंय ते करा. ते जर नाही केलं तर काय होणार? तुम्ही स्वतःला फसवता. यू आर चीटिंग युअर सेल्फ. टाइम टेबल बनवलेलं आहे, त्या टाइम टेबलला फॉलो करा. कमिटमेंट. कमिटमेंट विथ करिअर. तुम्ही काय ठरवलेलं आहे? येस, आय वॉन्ट टू बिकम आर्मी ऑफिसर. येस, अँड आर्मी ऑफिसर यू वॉन्ट टू बिकम. यू शुड हॅव कमिटमेंट. मग कमिटमेंट कोणाशी पाहिजे? बॉडीशी पाहिजे, अभ्यासाची पाहिजे, सायन्सशी पाहिजे, मॅथ्सशी पाहिजे. देर यू शुड नॉट हॅव कमिटमेंट विथ युअर फ्रेंड्स. कारण फ्रेंड्स मग तुम्हाला मागे खेचणार. फ्रेंड्स आर नॉट रिअली बॅड. फ्रेंड्स कसे असतात? दे ऑलवेज हॅव एन्जॉयमेंट मोड. त्या एन्जॉयमेंट मोड मध्येच असतात. सो यू शुड हॅव कमिटमेंट विथ युअर सेल्फ, विथ युअर सोल, विथ युअर माइंड, विथ युअर ब्रेन, विथ युअर एज्युकेशन. दिस इज कॉल्ड कमिटमेंट.
So today we have seen 3 C's. We have seen character, we have seen courage, and we have seen commitment. Tomorrow we will see conviction, courtesy, and competence. These 3 C's we will see tomorrow. So thank you very much. And let's see today's video. आजचा व्हिडिओ आपण बघूया. आणि या व्हिडिओमध्ये आपल्याला काय लर्न करायला मिळणार आहे. आय एम गोइंग टू शो यू वन व्हिडिओ. एक अशा व्यक्तीचा, ज्या व्यक्तीला 2 हात नाहीये तरीही तो त्याच्या जीवनामध्ये काहीतरी करण्याचा प्रयत्न करतोय. लुक ॲट युअर सेल्फ. यू हॅव 10 फिंगर्स, 2 आईज, 2 इयर्स, 2 हात आहेत, 2 पाय आहेत. We have everything. God has given us everything, but still we are not doing जे त्याला एक्सपेक्टेड आहे, देवाला जे एक्सपेक्टेड आहे ते आपण नाही करत आहोत. तर बघूया या व्हिडिओमध्ये आपल्याला काय शिकायला मिळतं. लेट्स डू दिस. लेट्स वॉच. ओके, I'm going to share my screen. This is 10 minute 48 seconds video. And the boy is Roshan Nagar. Let's see. हॉस्पिटल आया तो मैं 2 पैर और 2 हाथों के साथ था, बट जा रहा सिर्फ 1 पैर के साथ था। ड्रेसिंग के दौरान मुझे इतना ज़बरदस्त पेन होता था कि मेरे घर वालों के साथ साथ मेरे आसपास के घर वालों को भी पता चल जाता था कि आज रोशन की ड्रेसिंग हो रही है। अब तक ज़िंदगी खेल रही थी मेरे साथ, अब मेरी ज़िंदगी के साथ खेलने की बारी थी। नमस्कार साथियों, शेक्सपियर साहब ने अपने एक प्ले में कहा है कि ज़िंदगी एक रंगमंच की तरह है। ऊपर वाले के द्वारा मिले हुए हमें किरदारों को बखूबी निभाना है और एक दिन चले जाना है। ज़िंदगी के बारे में खूबसूरत बात मैं भी आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो सोच के रखते हो ज़िंदगी के लिए, आप जो प्लान बनाते हो ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी उससे कई बेहतर प्लान बनाती है आपके लिए। और मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ कि लाइफ में जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। और मेरी एक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूँगा और इस स्टोरी के अंत तक आप सभी को मेरी इस बात पर यकीन हो जाएगा कि वास्तव में लाइफ में जो कुछ भी घटित होता है वो कहीं ना कहीं हमारे अच्छे के लिए होता है। तो मैं मेरी स्टोरी शुरू करता हूँ। मेरी कहानी शुरू होती है बचपन से। बचपन जैसा कि सभी का नटखट भरा शरारतों सा होता है, मेरा भी कुछ वैसा ही था। एक दिन छत पर बैठा हुआ था और नीले कलर की एक पतंग मेरे सामने से जा रही थी। पतंगबाजी का मुझे बड़ा शौक़ था और मकर संक्रांति का दौर था। नीले कलर की एक पतंग मेरे सामने से जा रही थी। वो पतंग लेने के लिए मैं छत पर दौड़ा गया और छत के ऊपर पड़ा बांस का डंडा मैंने उठाया, बट मेरी बदकिस्मती ये थी कि वो बांस का डंडा छोटा पड़ गया। वो पतंग निकल ना जाए उसी हड़बड़ी में मैंने वहीं छत पर पड़े सरिये को उठा लिया। जैसे ही मैंने सरिया उठाया, मेरी बदकिस्मती फिर से आप देखिए कि मेरे घर के पास से जा रही 36 केवी वोल्ट की हाई टेंशन लाइन से उस सरिये ने अर्थिंग बना ली। जैसे ही अर्थिंग बनाई मैं बेहोश हो गया था। जब मुझे होश आया तब डॉक्टर्स की निगरानी में था और पूरे 2 दिन तक डॉक्टर्स ने मेरे जले हुए हाथों में खून का दौरा फिर से शुरू होने का वेट किया, पर ऐसा नहीं हो पाया। मेरी जान बचाने के लिए मजबूरी में डॉक्टर्स ने मेरे दोनों हाथ और एक पैर काट दिया, पर तब भी वो श्योर नहीं थे कि मैं बच जाऊंगा। वो ये भी नहीं कह रहे थे कि ये इस कंडीशन में आ सकेगा कि हम इसकी सर्जरी कर सकें। बट मुझे डिस्चार्ज दिया गया। हॉस्पिटल आया तो मैं 2 पैर और 2 हाथों के साथ था, बट जा रहा सिर्फ 1 पैर के साथ था। 6 महीने तक मेरी सर्जरी हुई, वो ड्रेसिंग हुई घर पर ड्रेसिंग के दौरान मुझे इतना ज़बरदस्त पेन होता था कि मेरे घर वालों के साथ साथ मेरे आसपास के घर वालों को भी पता चल जाता था कि आज रोशन की ड्रेसिंग हो रही है। खैर 6 महीने बाद में जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। मैं अपने परिवारजनों के बदौलत और कंपाउंडर की मेहनत की बदौलत में बिल्कुल ठीक हो पाया, फिजिकली में फिट हो पाया। ये लाइफ का मेरे सामने पहला चैलेंज था। इसके बाद में जो कुछ हुआ वो इस तरह से हुआ कि अब तक सिर्फ मेरे शरीर के घाव भरे थे,
ज़िंदगी की चुनौतियाँ अभी बाकी थी। अब तक ज़िंदगी खेल रही थी मेरे साथ, अब मेरी ज़िंदगी के साथ खेलने की बारी थी। जब मैं फिज़िकली फ़िट हो गया तो मैं पैर लगवाने के लिए जयपुर की महावीर विकलांग समिति में गया हुआ था। वहीं किसी ने सजेस्ट किया कि आपको जो लाइफ अब मिल चुकी है तो अब आगे क्या करना है। फिर मैंने भी ये सोचा कि सवाल तो सही है। तब जाके किसी ने मुझे सजेस्ट किया क्यों ना आप अपने बाजू पर पेन बांधकर लिखना शुरू करें। मैंने कहा आइडिया अच्छा है, कोशिश की जाए। मैंने देखा कि लाइफ अपन को ये मिली है तो इसको जीना तो है ही, क्यों ना बेहतर ढंग से जिया जाए। तो मैंने पेन बांधकर लिखने का प्रैक्टिस शुरू किया। शुरू के अंदर जब मैं पेन बांधता था तो 5 मिनट पेन बांधने में मेरे ज़बरदस्त पेन होने लगता था। हाथ पर पेन बांधता था मैं डोरे से। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि वो 5 मिनट से शुरू हुआ सफ़र 3 घंटे तक जा पहुंचा और 8th, 10th और 12th बोर्ड एग्ज़ाम मैंने बिना किसी एक्स्ट्रा टाइम, बिना किसी हेल्प के मैंने फर्स्ट डिवीज़न से क्लियर किए। इसी तरह से मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। पढ़ाई पूरी होने के बाद जो सबसे पहला ख्याल अपने माइंड में आता है वो रहता है करियर को लेकर कि अब अपन को क्या करना है, क्योंकि पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है। तो मेरे सामने सवाल आया कि अब अपन क्या करें। तब मैंने सोचा कि क्यों ना अपन गवर्नमेंट जॉब का जो रास्ता है वो अपनाते हैं, क्योंकि सभी के माइंड में मैक्सिमम स्टार्टिंग में यही आता है गवर्नमेंट जॉब, और फिजिकल हैंडीकैप पर्सन के लिए गवर्नमेंट जॉब बेस्ट मानी जाती है, बेस्ट स्कोप माना जाता है। बट जब मैंने इस रास्ते पर काम करना शुरू किया, मैंने तैयारियां शुरू की गवर्नमेंट जॉब की, तब मुझे पता चला कि अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए शारीरिक रूप से सक्षम नहीं हूँ। ये चैलेंज फिर से मेरे सामने आ गया लाइफ का। लेकिन फिर भी मैं हारा नहीं, रुका नहीं। मैं आप सभी को बता दूं, मेरे दोनों हाथ नहीं है और एक पैर नहीं है, उसके बावजूद भी मैं मेरे इसी हाथ से लिख भी सकता हूँ, कंप्यूटर भी चला सकता हूँ, ऑफिस में होने वाले सारे काम मैं कर सकता हूँ। तो मैंने सोचा चलो अपन ये सब कर सकते हैं तो क्यों ना अपन प्राइवेट जॉब का रास्ता अपनाएं। लेकिन वो भी मैं नहीं कर पाया। उसका रीज़न ये था कि मैं ऑफिस के तो सारे काम कर सकता था, बट कुछ पर्सनल काम जो मेरे खुद के थे वो मैं नहीं कर पा रहा था। आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने अपने नेचर्स कॉल को भी 2 नहीं, 3 नहीं, 4 से 5 घंटों तक कंट्रोल करने में खुद को सक्षम बनाया है, ताकि मुझे किसी और की मदद ना लेनी पड़े। उस दौरान मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स हैंड्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा महसूस होने लगी। तब मैंने नेट पर सर्च किया और मुझे पता चला कि इलेक्ट्रॉनिक्स हैंड्स के नाम की भी कोई चीज़ होती है जो अपने डेली रूटीन के छोटे मोटे काम आपको करने में हेल्प करेगी। तो उसका खर्च आता 13 लाख रुपए। इसके लिए मैंने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी मैंने जद्दोजहद लगा दी पैसे इकट्ठे करने में, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। तब जाके मुझे एक इंसान मिला जिसका नाम था डॉक्टर राजेंद्र कुमार सेन, जिनका हमारे जयपुर के अंदर NGO है गुलशन चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से। उन्होंने अपने ट्रस्ट के बिहाफ पर मेरे को 13 लाख रुपए डोनेट करके और वो हाथ लगवाए। तब उनके बदौलत मेरे जीवन में ये खुशी मुझे मिल सकी। अब हाथ मेरे लग चुके थे, ग्रेजुएशन में कर चुका था, लेकिन सवाल वही का वही बना हुआ था करियर को लेके कि क्या किया जाए। क्योंकि मुझे ये तो समझ आ गया था कि यूं बैठे नहीं रहना, कुछ ना कुछ तो करना है लाइफ के अंदर। तो मैंने सोचा कि दूसरों के अधीन काम होकर करने से बढ़िया है क्यों ना अपने आप को इस काबिल बनाया जाए कि दूसरों को काबिल बनने में मदद मिल सके। इसके लिए मैंने मेरा खुद का प्राइवेट इंस्टीट्यूट ओपन किया है, जिसमें हम टैली वगैरह सिखाते हैं और अपने स्तर पर पूरी कोशिश करते हैं कि जो भी बच्चा हमारे पास में कोचिंग करने आए वो बेरोज़गार ना जाए, उसे कोई ना कोई हम रोज़गार दे सके। ये सफ़र मेरा भी शुरू हुआ है, यकीनन ये बहुत आगे तक जाएगा, मेरा विश्वास है। दोस्तों, मैं आपसे एक बात ये कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी उसी के साथ खेलती है जो अच्छा खिलाड़ी होता है। मैदान में हारा हुआ इंसान तो फिर भी खड़ा हो सकता है, पर मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं उठ सकता। ये बात आप ध्यान रखिएगा। और एक बात और बताऊँ मैं आपको कि समय चाहे जितना बुरा हो, हमें ये लगता है कि आज हमारे साथ में ये ठीक नहीं हो रहा। जो मैंने बात आपको स्टार्टिंग में कही थी कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, वो मैंने इसलिए कहा कि हाँ, हो सकता है कि प्रेजेंट टाइम में आपके साथ कुछ गलत हो रहा हो,
और आपको लग रहा है कि यार ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा बुरा चल रहा है, मेरा बहुत ख़राब टाइम चल रहा है, लेकिन वो एक इंडिकेशन होता है कि आपका अच्छा समय आने वाला है। और आप यकीन मानिए, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। सपोज़ कीजिए कि कोई आपका फ्रेंड बोलता है कि यार फला कंपनी खुली है, चलो उसके अंदर इन्वेस्ट कर दो, उसके अंदर इन्वेस्ट कर दो, बट किसी रीज़न वजह से आप नहीं कर पाते हो। फिर आपको पता चलता है 2 महीने बाद कि वो कंपनी फ्रॉड निकली, और उसके बाद में आपको ये लगता है 2 महीने बाद, चलो यार अच्छा हुआ मैंने उस टाइम पर इन्वेस्ट नहीं किया, तो आपको ये पता चल जाता कि जो हुआ मेरे साथ वो अच्छे के लिए हुआ है। और अंत में ये चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि 1000 दुखों से लड़ा हूँ मैं, देख ज़िंदगी तेरे सामने मजबूत खड़ा हूँ मैं। 1000 दुखों से लड़ा हूँ मैं, देख ज़िंदगी तेरे सामने मजबूत खड़ा हूँ मैं। तू लगा तुझमें जितना जोर है, तू लगा तुझमें जितना दम है, मेरे सर के ऊपर मेरी माँ का हाथ, ये क्या कोई खुदा से कम है। दोस्तों मेरे दोनों हाथ नहीं थे, दोनों हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, फिर भी मैंने लिखना सीखा। मैक्सिमम लोग एक बार लिखना सीखते हैं, मैं 3 बार लिखना सीखा। पहले जब हाथ है तब मैंने लिखना सीखा, फिर मेरे हाथ कट गए, उसके बाद में बाजू से लिखना सीखा, फिर मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स हैंड से लिखना सीखा। मैंने 3 बार सीखा यार, और उसके बाद में चलना सीखा 2 बार। ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि चुनौतियाँ आएगी आपकी लाइफ के अंदर, और चुनौतियाँ आती इसलिए है, वो कोई आपकी दुश्मन नहीं होती है, वो एक बूस्टर की तरह होती है। वो आपको जगाने आती है कि तू ये नहीं है जो तू अभी कर रहा है, तू अपनी ज़िंदगी जो जी रहा है उससे बेहतर ढंग से अपनी ज़िंदगी और जी सकता है। तो दोस्तों चुनौतियों को आने दो, उनका सामना करो। जब आप उनका सामना करोगे तो वो आपसे नजरें नहीं चुराएगी, आपके मित्र बन जाएगी। तो चुनौतियां आने दो, है कि नहीं? सो इट इज रिअली नाईस थिंग ऍक्च्युली. त्यांचंही करिअर आता जस्ट स्टार्ट झालेलं, पण 2 हात नाही, 1 पाय नाहीये, तो व्यक्ती करिअर करायला निघालेला, ही खूप मोठी गोष्ट आहे. इथे लक्षात, आपल्याकडे सगळ्या गोष्टी आहेत पण आपल्याला अभ्यास होत नाहीये, आणि करिअरच्या नावाने तर आपलं अजून काय, आपलं करिअरचा अ पण सुरू नाही झाला, ए पण नाही आपण सुरू केलेलं. सो वी हॅव टू रिथिंक, आपल्याला विचार करावा लागेल. तुम्ही खूप लहान आहात यासाठी, पण माझं एकच सगळ्यांना म्हणणं आहे की जे आता मिळालंय ना तुम्हाला, त्याचा योग्य वापर करा. तुम्हाला चांगले आई वडील मिळाले, चांगलं शिक्षण मिळालेलं आहे, रिस्पेक्ट करा त्या गोष्टीचं. ओके, चलो, थँक यू व्हेरी मच. टेक केअर, बाय बाय, सी यू टुमॉरो. Bye, sir. बाय बाय. Have a nice day. Bye, sir.